by 2 plus n is equal to 1 to infinity an cos nx plus n is equal to 1 to infinity bn sin nx. Okay, right? A naught was what? This is 1 upon pi, and if your interval is alpha 0 से 2 pi का है, so this is 0 to 2 pi fx dx, and if an was 1 upon pi 0 से 2 pi fx into cos nx dx, and an was 0 से 2 pi fx into sin nx. Pi to pi, then it will be the minus pi to pi. Okay. Hello. This value is minus pi when your x is lying between minus pi to 0, and this value is x when this lying between 0 to 2 pi, 0 to pi. ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जो कि सबको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है ना. This have the point of discontinuity, point of discontinuity at x is equal to 0. तो इसका आपको फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन निकालना है, यानी जो इंटरवल दे रखा है आपको, you have the interval from minus pi to pi. Again you can see the interval is minus pi to pi. This value is minus pi, this is pi, but in between this there is a point x is equal to 0. This is the point of discontinuity. ये क्या है आपका point of, is it clear? Yes sir. So for this reason, जब माइनस पाई से 0 के लिए है तो जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो डिफाइन है माइनस पाई, और जब 0 से पाई है उस रीजन के लिए फंक्शन आपका डिफाइन है क्या, एक्स. क्लियर है? हेलो. यस सर. तो जो आपका करस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड फोरियर required Fourier series for the given functions. उसके लिए आप फिर से ये फॉर्मूला लिखोगे, fx is equal to a naught by 2 plus n is equal to 1 to infinity an cos nx plus n is equal to 1 to infinity bn sin nx. Okay. Again, when you calculate a naught, so this will be 1 upon pi and interval is minus pi to pi. But this time you cannot find directly, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो पहले आप यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे.
So this 1 upon pi is outside. So first goes to minus pi to 0 fx dx and then goes to 0 to pi fx dx. Is it clear? Yes, sir. इस तरह से आप ब्रेक करेंगे जब भी आपको डिसकंटिन्यूटी वाला फंक्शन मिलेगा. So now just put the value for this part minus pi to 0. Your fx is, I think this is what? How much? Minus pi. fx की वैल्यू क्या है आपके पास? Minus pi. Yes, sir. For this part fx is what? X. है ना? So just calculate this value. So this gives you 1 upon pi minus pi is outside. Then integration of dx is x, taking limit minus pi to 0. And this is x square by 2, taking limit 0 to 2, 0 to 5. So just simplify this thing. Minus pi times 0 minus minus plus हो जाएगा. So this is only pi and this will be pi square by 2. So which is equal to 1 upon pi. This is minus pi square plus pi square by 2. So this is how much? Minus pi square by 2. So एक pi cancel हो जाएगा. So this will be minus pi by 2. Is it clear? Yes, sir. So you have calculated the value of a naught. So hence you have calculated this is equal to minus of pi by a naught की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? माइनस. अब आपको निकालना है an. So now so an होगा. Again you will write the same formula 1 upon pi minus pi to pi fx into cos nx dx. Again you will break this. First you will define minus pi to 0 because there is a discontinuity at x is equal to 0. x is equal to 0 पे क्या मिल रहा है आपको? डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है. तो आप उसे ब्रेक करिएगा पहले एंड देन प्लस 0 to pi. Right? Now just put the value. So again for this part your fx is minus pi. So can I take minus pi is outside? And this time this is 0 से pi and fx is your x. So this is x into cos nx dx. Okay? Hello? Yes, sir. Okay. So just calculate this value. So this will be 1 upon pi. पहले इसकी वैल्यू निकाल लो. Cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा? Sin nx divided by n. तो n को हम बाहर लिख रहे हैं and taking limit minus pi to 0. और अभी इसको ऐसे ही रहने दो. Now if you put the 0 भी 0 होगा और sin n pi भी क्या होगा? 0 होगा. तो ये पूरा फंक्शन ब्रैकेट क्या हो जाएगी? 0. आपको पता है ना sin n pi की वैल्यू क्या होती है? 0. Yes, sir, पता है. तो जब ये पाई रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 पे तो 0 होता ही है. So this is 0. So this whole term is vanished. So you have just this thing 1 upon pi time this integral 0 to pi x cos nx dx. This is the value of a. यहाँ तक सबको क्लियर है? Hello. Yes, sir. Okay. So just apply the integration by part here. So this will be the first function. This will be the second function. So apply this thing. 1 upon pi is outside, and if you leave the first function, the integration of this cos nx minus differentiation of this is 1
एंड cos nx का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा, sin nx by n, so I can अपॉन में n, ठीक है ना, कैन आई राइट। और इस पूरे के ऊपर लिमिट है आपकी 0 से लेके पाई तक, ठीक है। Just simplify this thing, 1 upon pi, this will be x। सर वहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा ना बीच में, क्यों आ जाएगा प्लस, cos का इंटीग्रेशन तो प्लस ही होता है ना, तो उससे क्या अभी 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 करेंगे तब आएगा ना, यहाँ पे अभी क्या थोड़ी है। जब आप यहाँ अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका माइनस कॉस आएगा, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये 1/n² cos nx हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके सर, यस सर। अब आप लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करो, फिर पुट पाई। तो देखो पाई की वजह से, साइन पाई की वजह से ये 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, cos n पाई अपॉन n², ठीक है। लोअर लिमिट पे आ जाओ, माइनस x की वजह 0 से ये 0 बन जाएगा और cos 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, सो दिस इज सिंपली 1/n²। क्लियर है सबको? यस सर। So from here this is equal to 1 upon pi times cos n pi upon n² minus 1 upon n². If you take n² as a common, so this is 1 upon pi n² into cos n pi minus 1. This is the value of a. Clear है? सर यस सर। तो आपने ये an कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह से अगर आप, और आपको साथ में ये भी याद होना चाहिए कि cos n पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 n। तो इसको बाद में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हेलो, यस सर। उसी तरह से आप फिर bn कैलकुलेट करोगे। सो फॉर द bn दिस विल बी 1 upon pi minus pi to pi fx into sin nx dx. Again this will be break in two parts. First it goes to minus pi to 0 fx sin nx dx, and then it goes to 0 to pi fx sin nx dx. Clear है? So just put the value of this. Again this will be minus pi and this is minus pi to 0 sin nx dx, and this will be 0 to pi x sin nx dx. सबको क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। लिख रहे हो ना आप लोग? यस सर। यस तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप लोग तो कर लोगे अब ना। सेम प्रोसेस से होगा, जैसे अभी हुआ है इसमें सेम इसी तरह से होगा ये, ठीक है ना। यस सर। सेम प्रोसेस से पहले इसकी वैल्यू निकाल लोगे, फिर इस पे बाय पार्ट लगा के कैलकुलेट कर लोगे। सो यू विल फाइंड दिस थिंग, दिस टाइम यू विल फाइंड दिस bn is equal to 1 pi n and this is 1 minus 2 cos n pi। सिर्फ ये मिलेगा आपको, ठीक है। 1/n, this is not pi, this is 1/n, ठीक है। यस सर। कैलकुलेट कर लेना इसको, वेरीफाई कर लेना इसको कैलकुलेट करके। क्लियर है ना? यस सर। सो हेंस द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज जो हो जाएगी इस फंक्शन के लिए,
x a0 by 2 plus n is equal to 1 to infinity an cos nx plus n is equal to 1 to infinity bn sin nx. Just put all the value. a0 क्या था आपका? minus pi upon 2. Minus pi upon 2, right. So minus pi upon 2 divided by 2, so this becomes minus pi upon 4, and then n is equal to 1 to infinity. What was an? 1 upon pi n square into cos n pi minus 1. right, and into में यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos nx. ठीक है ना? And then bn is this thing 1 upon n, 1 minus 2 cos nx n pi and sin nx. ठीक है? ठीक है सर. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पाई जो है वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं n पे, तो आप इसको बाहर भी ले सकते हो. तो यू कैन रीराइट दिस थिंग minus pi by 4 and 1 upon pi को सीरीज से बाहर ले सकते हो. दिस इज pi, and then you can write n is equal to 1 to infinity 1 upon n square into cos n pi minus 1 into cos nx, and then this is n is equal to 1 to infinity. यहाँ पे तो डिपेंड कर रहा है तो इसको बाहर नहीं ले सकते, n है ये. Sin है. So this is the required Fourier series for this function. Is it clear? Yes, sir. So this is the way to calculating the Fourier series when the given function have the point of discontinuity. So you will break the function along the point of discontinuity. So which is showing here the x is equal to 0 पे आपका point of discontinuity था. तो आपने पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ करके उससे ब्रेक करके किया. ठीक है ना? यस सर. लिखा आप लोगों ने? यस सर. ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन fx equal to, this time the function is defined like that. This is minus 1 when your x lying between minus pi to minus pi by 2, and then this is 0 when it is lying between minus pi by 2 से लेकर के pi by 2, and then it is 1 when it is lying between pi by 2 से लेकर के pi. ठीक है ना? ये आपका फंक्शन है और इसका आपको फोरियर सीरीज निकालना. क्लियर है? यस सर. पहले तो क्वेश्चन लिखो आप लोग. सर लिख लिया. पीछे वाला सवाल का सॉल्यूशन लिखा? यस सर. समझ आ रहा है ना? यस सर. यस सर. ओके. तो इसमें जो आपका पॉइंट इंटरवल है, अगर आप सॉल्यूशन पॉइंट तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है इसमें भी? minus pi to pi. minus pi to pi, exactly. This is from minus pi to pi. और इस बीच में जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला है वो कहाँ कहाँ पे मिला है? एक तो माइनस पाई बाई 2 पे मिला है और एक पाई बाई 2 पे मिला है. ठीक है ना? Yes, sir. So there is 2 point of discontinuity. One is minus pi by 2 and another is pi by 2. तो इसका मतलब इस पर 3 पार्ट में फंक्शन ब्रेक होगा. यहाँ से यहाँ तक के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? यू कैन सी दिस इज -1. यहाँ से यहाँ तक के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0. और फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1. क्लियर है? Yes, sir. तो
again here x is equal to minus pi by 2 and pi by 2 is the point of discontinuity. ठीक है, तो फिर से जो आपकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज होगी उसके लिए फिर से आप वही फॉर्मूला लिखोगे. So that will be fx a naught by 2 plus n is equal to 1 to infinity an cos nx plus n is equal to 1 to infinity bn sin nx. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. So just find this a naught की वैल्यू क्या हो जाएगी? Again a naught will be 1 upon pi minus pi to pi fx dx, but this time this will be break like that. First it goes to from which to which? Minus pi to? Minus pi by 2. Yes, minus pi to minus pi by 2. And then it goes to minus pi by 2 to? Pi by 2. Pi by 2. And then it goes to? Pi by 2 to pi. Pi. ठीक है ना? ये उसैद है क्लास में क्या? उसैद. So just put all the values. Minus pi by 2 के बीच में fx की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1. -1. So this is -1 dx. And then minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में fx की वैल्यू क्या है? 0. तो ये पूरा इंटीग्रेशन ही खत्म हो जाएगा. And then this is pi by 2 pi, then this is 1 dx. क्लियर है सबको? This will be 1 upon pi. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -x, तो माइनस को बाहर ले लो आप. And this is minus pi to minus pi by 2. ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा. And this is x from pi by 2 to pi. ठीक है ना? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. So what will this? This will be 1 upon pi. यहाँ से ये क्या आ जाएगा? Minus pi by 2 and minus minus ये plus हो जाएगा. This will be 0 तो खत्म ही हो गया. This is pi minus pi by 2. So which is equal to 1 upon pi. ये कितना आ जाएगा? Minus pi by 2. This will be pi by 2. And this will be also pi by 2, right? So these two are cancelled. So this value is also 0. तो an की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? सॉरी, a नॉट की वैल्यू क्या आ गई? हेलो. 0. सबको क्लियर है? So a naught I have calculated. This is 0. Now come to the an. जब आप an कैलकुलेट करोगे तो फिर से यही फॉर्मूला लिखोगे 1 upon pi. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. फर्स्ट विल बी दिस विल बी व्हाट? minus pi by 2 to minus pi to -pi to -pi by 2. बाइक क्यों ला रहे हो? हाँ? कहाँ गई थी? right. चावल ला. Then it will be minus pi by 2 to pi by 2. Pi by 2. करके दिखाओ. And then it will be pi by 2 to Pi. pi. अब तुमसे ज्यादा तो आसन जान किया.
ठीक है ना? Yes, sir. So just see this thing. Put all this value. So this will be 1/5 again. यहाँ पे वैल्यू क्या है? -1. -1. So minus is outside. You can just put this is cos nx dx from -π to -π/2. ठीक है ना? यहाँ पे 0 ही है fx, तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Is it clear? Yes. और यहाँ पे 1 है आपका, so this will be π/2 to π cos nx. ठीक है? अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? पहली चीज तो ऐसी कंसेप्ट लगा डेफिनेट इंटीग्रल का कि अगर लिमिट्स को यहाँ पे -1 और -1 से मल्टीप्लाई है ना कर पापा? दे तो यहाँ पे भी -1 15 और 9 होगा ना? क्या 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 है? 135 का 135 और बीच में क्या है? माइनस में है 135 माइनस में है राइट? तो 9 15 में 135. हाँ ठीक है. Yes, sir. डेफिनेट इंटीग्रल जो 12th क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो ये है थोड़ी सी तुम जानते हो. अब अगर लिमिट इंटरचेंज करो यहाँ पे π/2 से पाई लिखो यहाँ पे. Let's suppose you are taking lower upper limit is here and upper limit is here. तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर. अब आप देखो दोनों सेम इंटीग्रल आ गया, तो ये भी कट के क्या आ गया? बिना कैलकुलेट किए हम इसकी वैल्यू को क्या कह सकते हैं? These two are cancel. सेम इंटीग्रल सेम लिमिट. बनाना बहुत जरूरी है. होगा जब दोनों तरफ नंबर होगा. सर एक बार दोबारा से बताना पीछे से. माइनस आपने किया है. अगर आपके पास a to b fx dx है, ठीक है ना? हेलो. Yes, sir. तो अगर आप Yes, sir. सेम वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हो, सपोज यहाँ लिख दिया ma, यहाँ लिख दिया mb, लिमिट एरिया बढ़ा रहे हो आप, तो सेम एरिया रखने के लिए यहाँ 1/m से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? क्लियर? Yes, sir. So that property I have applied here. यहाँ से माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये +π हो गया, ये +π हो गया. माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा. हेलो. Yes, sir. और दोबारा जब आप लिमिट इंटरचेंज करोगे तो इसमें माइनस आ जाएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. ये भी तो प्रॉपर्टी है कि अगर आपका हेलो मैम क्लास ले रहा था, बस आ रहा हूँ. ठीक, बस आ रहा. और आपको ये भी पता है कि a to b fx dx, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस ऑफ b to a fx dx. ठीक है? हेलो. तो उस प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके ये 0 हो गया. क्लियर है ना सबको? यस सर. और अगर नहीं क्लियर है तो लिमिट लगाओगे तब भी 0 आना ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है. ठीक है ना? 9 में से 5 घटेगा. हेलो. यस सर. अब उसी तरह से आप bn निकालो. सो हेंस यू आर इन द सिचुएशन दैट an इज 0. हाँ हाँ आप ठीक है? बिल्कुल नहीं बताएंगे. इस्माइल साहब क्लास में है ना? Yes, sir. ओके.
Now टेबल वगैरह सब याद रहेगा तब ना। अगर आप bn कैलकुलेट करोगे, so again you will write the formula for bn, this 1 upon pi. Again 49 first it will be minus pi to minus pi by 2 बचना है 12 fx sin nx dx, then it will be आप 45 को minus pi फैक्टराइज by 2 to pi by 2 fx sin nx, and then it will be pi by 2 to pi fx sin nx. नहीं 2 से नहीं 3 से ठीक है ना सबको? नहीं 5 से Clear? 5 है 0 5 आदत तब 5 से कटता है वरना नहीं कटता। 3 से कटने का क्या Again, है? इसके लिए -1 आएगा, इसको बाहर ले लो, दिस -1 इज आउटसाइड, नहीं तो आएगा minus pi to minus pi by 2 9 नहीं आएगा 3 sin आएगा। nx, ये पार्ट 0 हो जाएगा बिकॉज इस इंटरवल में fx 0 है, तो दिस इज 0 होल 0, एंड फॉर दिस पार्ट fx pi by 2 to pi, this time this is what? Only sin nx dx. But you can see this time, अगर आप इस बार ये लॉजिक लगाते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ऐड हो जाएंगे सर। इस बार प्लस हो जाएंगे, है ना? यस सर। 5 1 हाँ 3 3 5 देखिए 3 3 5 आपने 5 ले लिया, इन दोनों को ले लिया, 9 और 5 लिया था। आप ऐसा काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखिए तो हो रहा है। इसको छोड़ो, आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसी तरह से इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज Cos करने का आपने nx जैसे पहले ये निकाला ना, 9 माइनस नहीं हुआ, प्लस हो जाएगा ना, ये तो सही है। माइनस जब बाहर निकलेगा, और यहाँ पे आप n बाहर निकाल लो, सो दिस इज 1 by n हो जाएगा ये, और इसके ऊपर आप लिमिट लगा दो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी -1 by n आपका बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी cos nx बताया ना हमको भी pi by 2 कैसे to pi. निकाला So जाता है। just put the limit. This will be 1 upon pi, और ये आपका है क्या 1 by n है ये, कैसे? और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, सो दिस विल बी cos n pi by 2, और ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ cos n pi. अब इज इट क्लियर? आपको माइनस कितना चाहिए? अगर 3 या 9 अगर मान लीजिए 3 या 9 के तरह से -1 upon n, दिस इज व्हाट पाई है ये, 27 में से 5 घटाएंगे 22 नहीं होगा, इसको इधर कर दीजिए, इसको पाई इधर कर दीजिए, माइनस ऑफ cos pi by 2 n pi by 2. 15 में से Now tell me what is the value of cos n pi by 2 and what is the value of cos n pi? 3 गुना 5 या 15 या 45 ये भी होता है। अगर 42 माइनस 42 रहेगा तो क्या करेंगे? 3 गुना 45 cos n pi equals to -1. इसी को ज्यादा करके देखते कैसे पूरा ऐसे करके सोचने से नहीं होता। पहाड़ पे याद नहीं देंगे कहाँ तो 15 के 15 से 45 क्या बता पाए? What multiple of pi by 2 पे 0 होता है ना? इतना देर में करते रहोगे तो खत्म हो। So this will be what? 1 upon pi 1 upon n times 0 minus 1 raised to the power n, and this will be minus 1 upon n minus 1 raised to the power n minus. Clear है? यस सर। 1 upon n को कॉमन लेके बाहर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा 1 upon pi n, और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस दिस थिंग, और ये वाला भी माइनस। गेट खोलो। क्लियर? यस सर। So basically this is equal to कौन है? -2 times 1 raised to the power n. तो जो आपका bn आ गया, दिस इज -2 upon n pi
minus 1 raised to the power n. This is the value of Bn. Is it clear? चलो जाओ यहाँ और आ रहा यहाँ सबको क्लियर है? हेलो, Yes, sir. जो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज हो जाएगी that was equal to a naught by 2 plus n is equal to 1 to infinity an cos nx थोड़े से लाए plus n is equal to 1 to infinity dn sin nx. तो जस्ट पुट ऑल द वैल्यू a नॉट भी आपका 0 है, an 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. तो bn क्या है आपका -2/n पाई इंटू -1 रेज़ टू द पावर n. 6 और 2 बस ये सीरीज आ रही है आप, तो इसको चाहो तो आप ये जो वैल्यूज है जो n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि यू कैन राइट दिस सीरीज -2 इंटू -1 रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाई n पाई, नहीं डिवाइड बाई पाई, एंड देन द सीरीज इज n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 by n. Is it clear? Yes, sir. नहीं, ये तो n पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये तो अंदर ही रहेगा. सॉरी, Sir, -1 upon. हाँ ये अंदर ही रहेगा, ठीक है ना? ठीक है ना, ये 2 है. Is it clear? Yes, sir. तो ये आपकी फोरियर सीरीज हो गई इसके लिए -2/पाई n इज इक्वल टू 1 to infinity कैसे? -1 raised to the power n. ये वाला भी ये वाला. इसका कुछ टर्म लिख सकते हो, जैसे कि अगर आप n की वैल्यू 1 लोगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा इस सीरीज का, बताओ? -1, राइट? n की वैल्यू 2 पे क्या होगा? 1/2. 1/2. फिर क्या होगा? -1/3, है ना? इसमें और भी तो कुछ छूटा है, आप लोग बताए नहीं. यहाँ पे sin nx नहीं छूटा है. अब कितना इक्वल टू 28 हो गया, 29 करना है. मैं बताऊंगा. नहीं बताओ. यहाँ पर से यस सर, यस सर. गुना करने से 8 नहीं होना चाहिए. माइक करने के बाद ऑटोमेटिक. नहीं, अब क्या हुआ? ये कितना है? 2x ये नंबर कितना है? 3. sin nx और ये छूट कितना गया, है? तो ये रहेगा. 8. हाँ. तो 3 गुना 8 कितना होगा? पहला टर्म क्या होगा? 1 माइनस sin x. इसका क्या होगा? माइनस sin x. दूसरा क्या होगा? 1 प्लस 2 कर दे तो 24 हो जाए. दोनों को प्लस कर, sin 2x, है ना? दोनों को है ना? 24 हो जाए. इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर. -1/3 यहाँ सब में 1 था. sin 3x. इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा. सही होगा. अगर sin cos नहीं आ रहा है तो फिर वो फोरियर सीरीज बन ही नहीं सकती ना. तो 10 हो जाएगा. तो नंबर बताइए. 406. हाँ? 406. हाँ. कहाँ पर किया? सबको क्लियर है? मैं आपसे पूछने वाला था. हाँ, जी हमसे सर. पूछने वाला था तो तुम लोग सब विजिट कर दिया. हम तो यार अभी मेरे पर बिना नजर sin गया cos 117 के और आप फोरियर -22 सीरीज तब कैसे लिख मुझे सकते हो, क्या बताओ? इसको तो देखें कि क्या की नहीं किया. आगे बता दीजिएगा. फोरियर सीरीज का जो पहला मतलब है वो यही है कि आप किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस करते हो इन द सीरीज ऑफ sin n और दोनों को प्लस करें तो 22 हो जाए. यस सर. आगे तो कर दीजिए. 117 का यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा. टेबल लिखूं. तो इसी तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं. आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइप यही बनता है कि आपका कहाँ पे ब्रेक हो रहा है और कहाँ पे बिना ब्रेक वाला. तो यही सब क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है ना? यस सर. एक क्वेश्चन लिख लो, वो खुद से करना. 117 है ना. 1 + 1 + 7 कितना होगा? 1 + 1 + 7 कितना होगा? और द फंक्शन 1 + 7. हाँ,
fx is equal to 15 this is 0 तो 1 + 1 + 7 कितना कैसे 15 हो जाएगा? क्या करते हैं? sin x when lying between 15 0 to 15 pi. 15 यहाँ पे भी आपका इंटरवल -π से 0 के बीच, ठीक है ना? 1 + -π से 1 π के + बीच 7 में और बराबर 0 कितना पे होगा? डिस्कंटिन्यूटी वाला No. कॉन्सेप्ट लगा के तो 15 कैसे बोल रहा है गधा? आपने बोला 7 + 1 + 7 क्या हो लो? I Yes, sir. 1 + 1 + 7 बोल रहे हैं हम। हाँ ना, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ना सर रात से तबीयत Point खराब of हो what गया है, your बुखार है, says फीवर है। अब वहाँ जाएंगे भी हल्का है तो फीवर हल्का और जो है जुकाम हो गया है। for the तो function अगर वहाँ जाएंगे तो कोरोना fx is equal जी, to πx अरे भैया हमको अगर वहाँ चेक करेगा तो हमको अगर फीवर की वजह से अंदर नहीं जाने दे तो 1 और then pi times तो ऐसा कीजिए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। 9 9 हुआ, 9 3 से डिवाइड हो जाता है हाँ तो 117 भी जो है 117 भी जो है ना वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड ओ हाँ line from 1 to 2 कहाँ 117 को डिवाइड करो ना भाई, कहाँ दिखा कहाँ तू? इसका जो इंटरवल की लेंथ है आपकी वो क्या है 1 से लेके 2 तक, ठीक है? देखो, करो 13 से डिवाइड करो 13 से। बता दिए, यही तो हम उसको नहीं बता रहे थे कि 13 से डिवाइड होगा। तूने याद कहाँ है? खाली अभी दो सवाल कर देगा ना, सुनो वही चीज़ देखो ना, तो सवाल सही कर देना। नहीं ऐसे बाबा, ऐसे इसके बाद में तो पैसा लगता है, पैसा पढ़ाई तो है नहीं अभी। ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे। तो है ही, ये ही करता है। तो इस केस में जो आप ये लगाओगे फॉर्मूला लगाओगे वो क्या लगाओगे? जैसे कि पहले लगा देते 1/5 तो तुम्हारा पैंट ये यहाँ पर रखा हुआ है, 2 पैंट है, पैंट कितना था? जैसे कंपेयर करो इससे आराम का 0 से लेके आप 2 पाई लेते थे तो आप तो लेते मेरे थे है क्या ना। 1/π लेते थे, है ना? या -π से पाई भी रहता था तब भी आप क्या लेते थे? तो इसमें तो यही पर रखे थे, धोखे 1/π लेते थे। अब यहाँ पे पाई मिसिंग है, इसका मतलब ये 2 into 1 है, तो पाई की जगह क्या आ रहा है आपका बताओ? Sir, 1. 1 राइट। बस ये समझना है इसमें, इस क्वेश्चन में जो अगर आप ए नॉट कैलकुलेट करोगे तो 1/π की जगह क्या लिखोगे? 1/1 Sir, 1/1. और इंटरवल की लेंथ क्या होगी 0 से लेके? जो 0 से लेके 1 नहीं डायरेक्ट पहला इंटरवल बताओ ना 0 से 2 yes, sir. तो ये तो 1 ही हो जाएगा। फिर इसको ब्रेक करोगे पहले 0 से 1 में और फिर किसमें ब्रेक करोगे? एकदम हो जाएगा, कैसे नहीं होगा? ठीक है तो कैसे नहीं होगा? 1 से। ये कहने का मतलब है, ठीक है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कंपैरिजन सीखो कि कैसे हमने कंपेयर किया। अगर उसी तरह से अगर आप एन निकालोगे तो 1/π की जगह तो फिर से 1/1 हो जाएगा, तो वो तो टर्म खत्म ही हो जाएगा क्योंकि पाई जब कंपेयर कर रहे हो 1/π तो पाई की जगह 1 आ रहा है, ठीक है ना? है ना? ये सबको क्लियर है? Yes, sir. And this time this will be fx cos nx dx और फिर इसको ब्रेक कर लेना पहले 0 से 1 fx cos nx में, फिर आप ब्रेक करना 1 से 2 fx cos nx। अब इसके बाद आप 12th क्लास के इंटीग्रेशन लगा के इसको सॉल्व करना। उसी तरह से dn भी क्या हो जाएगा 1/1 तो खत्म ही हो जाएगा। सो दिस इज 0 से 2 fx sin nx dx। अब इसको इस तरह से और इस तरह से ब्रेक करना। सबको क्लियर है ये स्टेप? Yes, sir. करते करते जिस करके पैसा ले लिया हो गया पढ़ाई या कुछ नहीं, तब तक हम कहीं कहीं पैसा देने का नाम ले इसको कभी बिना पैसा लिए अब देना हो देते। So this is all about this. Okay.
तो वही तो टेबल याद नहीं है 13 नहीं में Yes, 117 अगर टेबल याद होता तो फिर 15 नहीं में 135 ये सब याद नहीं है 4 और 6 हम्म? 4 और 6 हाँ 4 और 6 देखा एक बार में बता दिया। तू तो अभी छोटा मोटा नंबर है तब ना अभी अभी आगे तुझेगा तब ना पता चलेगा। yes sir. हमें तो नहीं ना पीछे कुछ मिस हो गया है। स्टार्ट हो जाएगा ये पूछता हूँ कि जरूरत है तो जरूरत हो ही जाती इसी का तो 4 और 6 बुरा था इसी का तो 4 और 6 इसका क्या होगा? अटेंडेंस मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। दोनों सेम मैं है लगा दूंगा ऑलरेडी ये पूरा प्लस में है हाँ, और 30 भी पूरा प्लस में तो सेम है दोनों। यहाँ पर x लिखा हुआ है यहाँ पर y लिखा हुआ नहीं मैं बोला इसमें तो 10 आएगा ना 5 और 6 और हाँ। 14 कैसे आ गया? है 24 है ना 24 हाँ हाँ आ जाएगा अब उसका दूसरा फैक्टराइजेशन कीजिए क्योंकि दूसरे नंबर से डिवाइड कीजिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 होता है और दूसरे नंबर से डिवाइड कीजिए तो 14 भी आ जाएगा 7 और 2 यू कैन लीव। 7 चौके 28 होता है 7 के टेबल में 24 हाँ अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर लिया है मैं लगा दूंगा इसको।